So once again, I welcome all of you in today's current affairs class. Okay, so we will be starting again the analysis of the Hindu newspaper today on 29th of December. Okay, some good news, very good articles regarding comparison of education system in India and America. Also articles regarding Myanmar elections, and also one good article regarding this research deficit in India. Okay, one good article regarding research deficit in India. Okay, so the news which I am going to take up today, the first news is election of Myanmar. Okay, what does the news specifies? The news specifies that Myanmar is going to hold elections first time after the military coup, after military has taken over or army has taken over in 2021. Okay, now what is the significance of these elections for Myanmar and how democratically they are being held? Okay, how much cleanliness is there, transparency is there, and how much these elections are going to be held without fear, favor, and prejudice. Okay, then airlines must enforce regulations without delay. It is regarding the recent safety regulations which were issued to airlines in 2025. Okay, by DGCA, the apex body, the regulatory body of the civil aviation in the country, which also led to disruption of airlines in the past month. Okay, so also grand vision and the great Indian research deficit. We have a grand vision of becoming Viksit Bharat by 2047, but we have huge deficit in research and development. Okay, what government expenditure currently going on in research and development section, how we need to improve that, how we need to learn from the global examples, etc., etc. So these are all the things which we will be discussing. Then this is related to education system of United States of America. An anomaly has been drawn with the Indian counterpart and how American education system has lessons for India. Okay, this is the first article. The first article is Myanmar goes for elections. Okay, the first article is related to elections in Myanmar. Okay, army took over Myanmar when the rule of Aung San Suu Kyi. Some pronounce it as Aung San Suu Kyi and some pronounce it at Aung San Suu Kyi, whatever you want to pronounce. Okay, she was ousted from power in 2021 following some civil conflicts. Okay, and the civil war was going on throughout the country. Okay, now this is the Myanmar's first general election in 5 years. Okay, but it is being supervised by the military government, and military government is also participating in the election. The first round was held day before yesterday, on Sunday, and the next two rounds will be held in January 2026. Okay, now important is that we have one party, that is Union Solidarity and Development Party. Okay, this is considered to be the strongest contender. Why? Because it is the military backed party. Military is backing this party. Okay, but the junta group of Myanmar, what is junta? Junta is basically an organized establishment which basically does not stand against the established rule. Get the point? It has presented a vote to return of democracy, but we largely see that is it actually the return of democracy, because only voter turnout in Myanmar is only 37%. Okay, after the voter turnout also, then there is basically military supervision, and some reports are alleging that this is basically an election in which people are being forced to vote, and major stakeholders are not participating in the elections. This is all written in this news. Further, in editorial, Sham election. What is Sham election? The word Sham means something which looks good but actually it is not good. Okay, elections are taking place, so I have also not as good as it appears to be. Okay, Myanmar junta's search for legitimacy through controlled polls is futile. Means junta cannot get the political legitimacy as the polls are highly controlled. Electoral democracy means popular will. Okay, means popular will, and popular will means will of people through representation. But when elections are suppressing the will of people,
When elections are suppressing the will of people, then you cannot call them fair elections. Okay, I told you already, Myanmar is having 3 phases of election. 3 phases. First phase just took place yesterday, December 2025. Second and third phase is planned to be in January 2026. Okay, but important is what is important to note, that the last time winner, the National League of Democracy, the NLD, National League of Democracy, this party was led by Aung San Suu Kyi, but again Aung San Suu Kyi is behind bars. Okay, and Union Solidarity and Development Party, which is basically military-backed party, is going to come into power. This is what is expected. But we have seen consistently in 2008 elections, democracy was being established and constitution was being framed, but the National League of Democracy boycotted it. Okay, why it was boycotted? It was boycotted because again it was said that it is unfair, it is not representing the public wishes. Again, the Union Solidarity and Development Party got victorious in that elections. Okay, so therefore it has been in turmoil overall from the past past 2 decades. Myanmar has seen different phases of turmoil. So again in this article it has been highlighted that the history is guiding that these elections may bring a victorious party, but it will not win the popular support. So Myanmar must brace for more conflict. This is what has been highlighted, that the conflict may only resolve when the real wishes of the people are given priority, when the elections are conducted in fair and clean and transparent atmosphere. ठीक है, ओके। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो है एयरलाइंस मस्ट एनफोर्स रूल्स विदाउट डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एयरलाइंस को पायलट रीशेड्यूलिंग में डिफिकल्टी आ रही है, स्टाफ रीशेड्यूलिंग में डिफिकल्टी आ रही है, रोस्टर बनाने में डिफिकल्टी आ रही है, और जो रेगुलेशंस लेटेस्ट हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से जो इशू हुए हैं, DGCA से जो इशू हुए लेटेस्ट, ये क्या कह रहा है? इसने रोस्टरिंग कहा कि पायलट्स का रोस्टर बनाओ, ठीक है, रोस्टरिंग करो पायलट्स की, ठीक है, नाइट टाइम में कितनी लैंडिंग्स कर सकते हैं, कितने आवर्स फ्लाई कर सकते हैं, डे टाइम में कितनी लैंडिंग्स कर सकते हैं, कितना फ्लाई कर सकते हैं। तो पाया गया मेजर ऑफ द एयरलाइंस जो हैं वो पायलट्स को ओवर टाइम पे भी काम करा रही थी, जिसकी वजह से सेफ्टी जो है वो पैसेंजर्स की या फ्लायर्स की जो है सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही थी। ठीक है, अब जो कहा गया है इनको रोस्टरिंग के लिए, तो देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ अमंग द एयरलाइंस, इसलिए आप देखोगे रिपीटेड कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर पा रहे, इसका मतलब आपके पास क्या नहीं है? यू हैव नो प्रिपेयर्डनेस for changes in norms. आपने ये नॉर्म बना दिया, ओवर टाइम नॉर्म्स, और पैसेंजर्स की सेफ्टी को आप क्या कर रहे हो? कंसिस्टेंटली जो है थ्रेट में डाल रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आप इफेक्टिवली कंप्लायंस नहीं कर पा रहे जितनी भी DGCA की सिक्योरिटी गाइडलाइंस है। तो अगर आप इफेक्टिव कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी फोर्स्ड टू टेक डिसीजंस जो हार्म कर सकते हैं एविएशन सेक्टर को। ठीक है, अभी हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस ये किया था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लास में जब मैं सिविल एविएशन के बारे में बता रहा था, जब मैं इंडिगो क्राइसिस के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसलिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो फेस की वो ये है कि हमने एक मोनोपोली ऑब्जर्व किया एविएशन सेक्टर में। लेकिन अभी एक पिछला आर्टिकल आया था, उसने कहा था कि मोनोपोली अगर नहीं भी मान सकते, लेकिन डिओपोली तो है ही है। डिओपोली मींस ओनली 2 फर्म्स, वन इज इंटरग्लोब एविएशन विच इज पॉपुलरली नोन एज इंडिगो एंड एयर इंडिया, बिकॉज एयर इंडिया हैज इमर्ज्ड एज सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन आफ्टर द मर्जर ऑफ वेरियस अदर स्मॉलर एयरलाइंस। ओके, इसीलिए हमने जो है रिसेंटली ये कहा कि कई सारी एयरलाइंस जो है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो, तो 3 नई एयरलाइंस को रिसेंटली गो अहेड का सिग्नल मिला है। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज अल हिंद एयरलाइंस,
ये भी इंडिया की एयरलाइन है, केरला बेस्ड ओनर है इसके, और इसको भी लाइसेंस मिला है, न्यू एयरलाइंस, ठीक है। दूसरा है फ्लाई एक्सप्रेस, अ न्यू एयरलाइन, और तीसरी है शंख एयर, ओके, शंख एयर। तो इन 3 एयरलाइंस को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। मेनली फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयरलाइंस को तो पूरी तरह से क्लियरेंस मिल गई है, ठीक है, लेकिन शंख एयर जो है अभी भी थोड़ा सा एनओसीज के साथ स्ट्रगल कर रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि आपको प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए जब भी रेगुलेशंस हो जो लोगों की बेटरमेंट के लिए हो। जितने भी एयरलाइन के ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स मस्ट हैव प्रिपेयर्डनेस। तो ऑपरेटर्स प्रिपेयर्डनेस इज क्वेश्चनड इन दिस आर्टिकल एंड डीजीसीए इज कंसिस्टेंटली सेइंग कि ये रूल्स जो है सभी एयरलाइंस को बहुत जल्दी क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हैवी पेनल्टीज, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे इंडिगो के ऊपर हुआ, उसका काफी सारा फ्लीट जो है वो कट कर दिया गया और सीट्स जो है वो उतनी फ्लाइट के जो स्लॉट्स है वो अलॉट कर दिए गए दूसरी एयरलाइंस को, ठीक है। हाँ, तो मोनोपली, डुओपली, ओलिगोपली ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। बेसिक इकोनॉमिक्स में बहुत थॉरली समझे जाते हैं कि क्या होता है मोनोपली, क्या होता है ओलिगोपली, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स कैसी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है और आपकी बेस को बहुत अच्छा करती है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिटन बाय व्हाट आई फील वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस, ठीक है, शशि थरूर, वेल एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट, ओके, नोन फॉर हिज उसकी एक बहुत खतरनाक वोकेबलरी के लिए ही इज नोन, ओके। सो नाउ ग्रैंड विजन एंड व्हाट इज द ग्रैंड विजन? द ग्रैंड विजन इज विकसित भारत बाय 2047। लेकिन इस आर्टिकल का कहना है कि नॉट पॉसिबल विदाउट बिग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक ना आप बड़े बड़े रिफॉर्म्स करोगे, व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? ये इकोनॉमी का वो सेक्टर है जो इनोवेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, जो इनोवेशन को प्रमोट करता है इकोनॉमी के अंदर। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस किस का है? एकेडमिया का। तो हमारे एकेडमिया का भी बहुत ज्यादा अच्छा हाल नहीं है, ये मैं आपको अगले आर्टिकल में बताऊंगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है हमारा बहुत ही ज्यादा डेफिसिट है, ठीक है। वो कैसे? आप देखना, हमारे ग्लोबल लेवल पे हमारे कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में रहती है? 17.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कहां पे है? इंडिया में है ग्लोबल पॉपुलेशन। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर ग्लोबली देखोगे आप, तो इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटपुट कितना है? 3% ऑफ ग्लोबल आउटपुट, ग्लोबल आउटपुट का सिर्फ 3% जो है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वहीं अगर आप देखोगे क्या चीज, पॉपुलेशन 17.5% मीन 17.5% ब्रेन से कंट्री में रह रहे हैं, सिर्फ 3.5% वहां का कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड इनोवेशन में। तो कुछ सीरियसली रॉन्ग है वहां पे। अच्छा, इनोवेशन से रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ठीक है। WIPO कहता है कि इंडिया में एक बड़ा ही मिक्स पिक्चर है, ठीक है। मिक्स पिक्चर कैसे है? अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है, अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो पेटेंट्स के लिए कितने लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया? 64,480 64,480 लोगों ने पेटेंट फाइल किए 2023 में, ठीक है। अब हमें लगता है ये बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले जितना था इट वाज ए 15.7% इंक्रीज, 15.7% इंक्रीज। लेकिन ये एक मिसलीडिंग नंबर है। वाई? बिकॉज हमारा बेस ही बहुत लो था। अब आपका मार्क्स आ रहा है एक से बढ़कर अगले टेस्ट में मार्क्स आ रहे 2, तो अब घर वालों को बोलोगे मेरे 100% मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। परसेंटेज वाइज आप ठीक हो, लेकिन आपका बेस है 1 नंबर, 1 से आप पहुंचे 2 नंबर, या बेस है 5 नंबर, 5 से पहुंच गए 10 नंबर, 100 में से 5 ले रहे थे, अब 10 ले रहे हो, और घर जाके ये बोल रहे हो कि मेरा परसेंटेज जो है मार्क्स का 100% इंक्रीज हो गया, 5 से मैं 10% पर पहुंच गया। फिर
घर वाले बोलेंगे फिर भी तुम फेल हो, फिर भी तुम्हारे 10% मार्क्स है। तो ये ऐसा ही है कि लो बेस था, इस वजह से 15.7% इंक्रीज तो दिख रहा है कि 2023 से 24 तक पेटेंट फाइलिंग में इंक्रीज तो हुआ है। लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे पेटेंट फाइलिंग में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इंडिया का रैंक जो है वो 47th है, 47th रैंक इन ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग, क्योंकि इस हमसे 46 कंट्रीज जो है वो ज्यादा पेटेंट फाइल कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल ग्रोथ जो है वो एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है एक्चुअली इनोवेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा ये कहा है कि हम अपनी जीडीपी का कितना % खर्चा कर रहे हैं आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है कितना है, इट इज हूवरिंग बिटवीन 0.6 to 0.7%। हालांकि 2023, 24 और 25 के बजट में कंसिस्टेंटली आर&डी का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, लेकिन अभी भी 1% हम टच नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके बरकस अगर आप देखोगे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाइना को देख लो या आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लो। ठीक है, अब देख लो चाइना कितना खर्चा कर रहा है अपना, चाइना 2.4% ऑफ जीडीपी ये आर&डी पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, अगर आप यूएसए का एग्जांपल ले लो, यूएसए कितना खर्चा कर रहा है जीडीपी पे, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 3.5%। अगर आप इजराइल को देख लो, सबसे ज्यादा इजराइल खर्चा कर रहा है कितना, 5.4%। ठीक है, तो ये डेटा शो करता है कि जहां इतना रिसर्च पे डेवलपमेंट पे खर्चा हो रहा है और इनकी जीडीपी का साइज भी कितना बड़ा है। ठीक है, यूएसए और चाइना का। ठीक है, तो हम उसके कंपैरिजन में 0.6 to 0.7% एक्सपेंडिचर करके क्या ही रिजल्ट यील्ड कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, उसके अलावा जो है आर&डी को ये कहा जाता है कि ये है इंजन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पावर। जब आप इंजन के ऊपर ही एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे तो आप नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स कैसे एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, अब उसमें यह भी कहा कि ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है कि हम कम खर्चा कर रहे हैं, हमारी एकेडमिया पे पुअर रिसर्च है। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम्स तो आगे हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस, पुअर सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, क्या चाहता नहीं, इनफैक्ट क्या करता है, इंपोर्ट कर लेता है। जितनी भी इनोवेटिव चीजें चाहिए, जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए, उनको इंपोर्ट करता है। उनको क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, और जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, अगर आप यूएसए देख लो, चाइना देख लो, उनमें प्राइवेट सेक्टर लीडिंग रोल प्ले करता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। लेकिन हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे है, अगर आप देखोगे कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, गवर्नमेंट कर रही है नियरली 64% एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल आर&डी एक्सपेंडिचर। टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे में से कौन ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इट इज गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का देख लो आप खुद ही, अगर 64% जो है वो गवर्नमेंट से आ रहा है, तो ओनली रिमेनिंग 36% इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अराउंड 36% इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, ठीक है, अब इसमें जरूरत क्या है, इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दे शुड राइज टू द चैलेंज, दे शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका रिफॉर्म क्या है, बिजनेस टाइकून्स इन इंडिया मस्ट राइज टू द चैलेंज। साथ में रिफॉर्म्स भी बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एकेडमिया इंडस्ट्री गैप है हमारे कंट्री में। एकेडमिया में जो मोर करिकुलम जो है वो हमारा थियोरेटिकल है रादर देन रिसर्च ओरिएंटेड, सो देयर इज एकेडमिया इंडस्ट्री गैप और एकेडमिया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गैप। दिस गैप शैल बी ब्रिज्ड, गैप टू बी ब्रिज्ड। और रिसर्च से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पीएचडी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को क्या करना है, ये सारी चीजों को ज्यादा फैसिलिटेट करना है। ठीक है, ज्यादा
फैसिलिटेट करना है, ठीक है। अब यूएस कंपनीज क्या करते हैं, यूएस में क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वहां पे एकेडमिया यानी कि यूनिवर्सिटीज, वो यूनिवर्सिटीज से सबसे ज्यादा अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स को उठा लेते हैं, इनोवेटिव माइंड्स को उठा लेते हैं, उनको पे भी करते हैं और उनके आइडियाज को फर्दर रिफाइन भी करते हैं मार्केटेबल इनोवेशंस के अंदर, ठीक है। अब इंडिया में ऐसा कोई कल्चर है नहीं, ठीक है। तो ये जो एकेडमिया यूनिवर्सिटीज है इनको कहते हैं लेबोरेटरी, क्या कहते हैं, लेबोरेटरी। और इंडस्ट्री को कहते हैं मार्केट प्लेस। अब जब लेबोरेटरी से मार्केट प्लेस तक आपका आइडिया या इनोवेशन पहुंच ही नहीं रहा, देयर इज ए गैप, और इस गैप को एक अच्छा टर्म भी यूज किया गया है कि ये एक सॉर्ट ऑफ वैली है, वैली ऑफ डेथ। जब तक ना इस वैली ऑफ डेथ को फुलफिल करोगे तब तक इनोवेशन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल सकती, ठीक है। और दूसरा और तीसरा चीज जो इसने हाईलाइट किया कि जैसे ही कोई इनोवेशन करने के लायक हो जाता है, कोई डेवलप्ड ब्रेन हो जाता है इनोवेटिव आइडियाज के लिए, उसको यहां पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एवेन्यूज, मोटिवेशन की वजह से वो अब्रॉड चले जाते हैं और अब्रॉड में अपनी इनोवेशंस का कंट्रीब्यूशन देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन ड्रेन, ठीक है। बहुत सारे पीएचडीज, बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उससे उनको यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, उनकी फंडिंग कम हो जाती है, कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है ब्रेन ड्रेन की क्या क्या वजह है बताइए इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर कम, ठीक है, मोटिवेशन कम, फंडिंग कम और कैरियर प्रोग्रेशन कम। तो वो क्या करते हैं, जैसे पीएचडी ले लिया, अच्छा सा इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया और चले जाते हैं अब्रॉड, ठीक है। ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से इंडिया का रिसर्च सेक्टर जो है वो इस समय बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमको करना क्या चाहिए, हमको सबसे पहले फंडामेंटल शिफ्ट करना चाहिए अपनी अप्रोच में। क्रिटिकल स्टेप उसमें क्या है, कम से कम R&D एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, R&D एक्सपेंडिचर को क्या करना है, इंक्रीज करना है टू 2% ऑफ जीडीपी। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें इंटेंट शो करा है, पिछले 2-3 साल में बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ काफी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। और 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड जो है ये गवर्नमेंट ने बताया एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इट इज अ स्टेप इन ग्रेट, इट इज ए गुड स्टेप इन ग्रेट डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी इट इज अ ग्रेट स्टेप इन गुड डायरेक्शन। जैसे कौन सा, इनोवेशन फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का। बट इसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस सेक्टर में यूटिलाइज करना है, डिस्बर्स कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, इन सभी चीजों में हमें इनोवेशन की जरूरत है। तो यूनिवर्सिटीज को हमें बनाना चाहिए हब ऑफ रिसर्च, एंड रिसर्च के बाद वी मस्ट टेक माइंड्स फॉलोइंग द अमेरिकन एग्जाम्पल एंड वी मस्ट मेक देम पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारा वंडरफुली रिटन आर्टिकल कि इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना गैप है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझ में आता है वो कौन सा सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जो इकोनॉमी में इनोवेशंस को प्रमोट करता है, नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव आइडियाज, बहुत सारी प्रोग्रेसेस को इन्वेंट करके इकोनॉमी में यूज करके फर्दर प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, ठीक है। ओके, next is this article, wonderful article, new ways of learning. Educationists must consider some crucial differences between higher education institutes in India and USA. ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में सिस्टम के भी डिफरेंसेस, इंस्टीट्यूशंस के भी डिफरेंसेस, फैकल्टीज के डिफरेंसेस, सब चीजें, ठीक है। पहला डिफरेंस है हमारे पास फैकल्टी का। इंडिया में कभी कभी बाहर से गेस्ट फैकल्टी आती है। फैकल्टी का जो पहला डिफरेंस बताया गया है कि इंडिया की फैकल्टी जो है वो है लोकल, इंडिया की फैकल्टी है वो लोकल, और यूएसए की फैकल्टी जो होती है वो होती है ग्लोबल। हमारी कंट्री में मेजर फैकल्टीज लोकल है, और अगर बाहर से कोई आते भी हैं वो गेस्ट लेक्चर्स के लिए आते हैं, ठीक है। पहला फैकल्टी वाला जो है। अब लोकल की जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस भी होती है वो लिमिटेड होती है। यहां पे पैरोकियल आइडियोलॉजिकल, पैरोकियल आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, और यूएसए में वास्ट आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
तो बहुत सारे आइडियाज जब आते हैं तो आप रीजन करने लगते हो चीजों को, आप डिस्कशंस करने लगते हो, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं और एक बेटर थीसिस एंटीथीसिस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी देख लो, जेएनयू देख लो, बाकी चीजें देख लो, वहां पे भी विजिटिंग फैकल्टीज तो हैं, लेकिन देयर इज बेसिकली acute shortage of cross cultural discussion, acute shortage of cross cultural discussion। ये तो हो गया टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव से हो गया? ये टीचर्स के पर्सपेक्टिव से। अब स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव देखेंगे हम। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी यही है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनमें मोस्टली क्या पाई जाती है? यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, सेम कल्चर सेम रेस से बिलोंग करते हैं, ऑल्दो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका में देखो या बड़े बड़े कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में देखो, हर कल्चर हर रेस से स्टूडेंट्स आते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट होता है। समझ रहे मेरी बात को? ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है एक्टिविटीज, नेचर ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस एक्टिविटीज। तीसरा पॉइंट है ऑन कैंपस एक्टिविटीज, ऑन कैंपस एक्टिविटीज। आर्टिकल कहता है, आई विल गिव यू द हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल। इट्स द आर्टिकल फर्दर सेज दैट इन द on campus activities in institutions in America, what we observe that various activities are carried out: research, sports, co-curricular activities, engagement into political debates, engagement into various constructive debates that are good for guiding the political leadership of the country. Whereas in our country, most of the focus is on academics, and if at all there is some political debates, it is not motivated by actual problem solving nature of the questions. It is motivated actually by the political ideologies, and the debates are mostly ideal and ideological but are not a problem solving in nature, barring few institutions. Okay, this is the third difference. The fourth difference is the gap between academia and administration, which I have already highlighted in the previous article, that in research, in other aspects, there is a huge gap which exists in the universities as well as the administration and governance agencies. Means from laboratory we are not able to carry out all the researches and findings into the actual field, and we are not able to reap the field benefits of all those things. Okay, moreover, the expenditure on education, which is very significantly high in America as compared to India, and also the facilities, the higher education research amenities, the higher education research facilities which are oriented towards problem solving rather than theoretical orientations which are found in Indian education system, ठीक है। तो ये सारे differences, ये सारे similarities, जो similarities में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा differences पाए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कुछ है जो लर्न किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड हो जाए, रादर देन वो किस ओरिएंटेड रहे, थियोरेटिकल थियोरी ओरिएंटेड रहे, ठीक है। उसके अलावा और भी जो असेसमेंट है वो, और भी जो डिफरेंसेस है वो है रिगार्डिंग असेसमेंट। हम फॉर्मल असेसमेंट करते हैं, मार्क्स, ग्रेडिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हम दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। हम समेशन करते हैं चीज़ों को और इकट्ठा असेसमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का। वहाँ पे असेसमेंट होता है इंडिविजुअल बेस। इंडिविजुअल असेसमेंट इज मोर बेटर देन समेटिव असेसमेंट। तो इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को असेस करके, उसकी कैपेबिलिटीज को असेस करके अकॉर्डिंगली उसी की तरफ हम जो है उसको सोल्यूशंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन जो है इंडिविजुअल जो इवैल्यूएशन से हमको क्या फायदा चलता है, हमको पता ये फायदा चलता है कि हम मार्क्स से आगे का सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इस इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए और इसे इसकी कंट्री के लिए एक बेटर रिसोर्स बनाया जाए, ठीक है। ये चीजें जो है और डिफरेंसेस पाए गए हैं, ठीक है। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट भी वहां की मानती है, दीज आर सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, और यहां से हमें एक्सीलेंट इनोवेटिव आइडियाज, एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर होते हैं रादर देन ओनली बुक रीडिंग थिंग्स, ठीक है। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे अच्छा इंडिया के जो इश्यूज है वो है रिसर्च फंडिंग से रिलेटेड भी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म ऑन कैंपसेस। मैंने कहा अमेरिका में पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है, और दैट इज टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन रियल इश्यूज एंड टू ब्रिंग इन रियल रिफॉर्म्स। लेकिन इंडिया का पॉलिटिकल एक्टिविज्म या तो एब्सेंट है, और अगर कई जगह पे 2-3 जगह पे प्रेजेंट भी है, दैट इज आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, दैट इज नॉट इशू बेस्ड, रादर इट इज पार्टी लाइन्स एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे इंडिया में इस समय ज़रूरत
क्या है, जैसे कि लिबरल एजुकेशन हमको सीखना चाहिए, हमको क्रिटिकल थिंकिंग सीखना चाहिए, ठीक है, हमको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, मल्टीपल डिसिप्लिन्स में एक्सपर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हॉलिस्टिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और ये एक पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो एकेडमिक्स का दुश्मन नहीं है। इट इज़ नॉट, पॉलिटिकल एक्टिविज्म इज नॉट एन एनिमी ऑफ एकेडमिया, रादर इट इज़ अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेंस में हो सकता है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म इज नॉट एनिमी ऑफ एकेडमिया रादर देन इट इज़ अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से परसुएट करना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग्स अगर यूनिवर्सिटीज़ की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंप्रूव करनी है, तो ये सारे जो हैं इंटरनेशनल एरिया के, इंटरनेशनल एरिना में जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन में, वो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट इज रिटन इन द आर्टिकल।